chapter number 25, our judicial system. And in the previous video we had studied about the unified judicial system and tenure and qualification for the post of justice. And today we will study about the powers and functions, jurisdictions. The jurisdictions of the Supreme Court may be categorized into three parts: original, appellate and advisory. First, original jurisdictions. The Supreme Court has exclusive jurisdiction over disputes between the Government of India and one or more states. Those matters which are related to the violation of fundamental rights of a person. सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, उनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है जो कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्ट आउट करने में वो मीडिएटर का काम करता है, और उसके पास ये पावर होता है कि वो उनको जितने भी डिस्प्यूट्स है, विवाद, उनको सॉल्ट आउट कर सकती। इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में हो या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो, या फिर कोई ऐसा मैटर हो जो कि वायलेशन से रिलेटेड हो या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, उन सब का न्याय जो है वो उसका न्याय करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। Appellate jurisdiction. This means that one can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court of the states with regard of constitutional, civil and criminal matters. A matter can be taken to the Supreme Court under the following circumstances: in the conflicts is related to the interpretation of the Constitution, if the High Court considers the matter fit to be referred to the Supreme Court, if the High Court has sentenced a person to death in a criminal case by revising the decision of the lower court, if the Supreme Court itself considers any matter important from legal point of view. अब यदि किसी स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजन पर यदि कोई पर्सन या कोई भी व्यक्ति या पार्टी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में यदि अपील करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या सिविल या क्रिमिनल मैटर हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करता है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जो कन्फ्लिक्ट्स है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसे अपील करने का अधिकार है। यदि हाई कोर्ट कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दे तब, यदि किसी क्रिमिनल केस में हाई कोर्ट किसी पर्सन को मौत की सज़ा दे तब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट खुद किसी मैटर को इम्पोर्टेंट समझे और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यस चाहे कि हाँ इसमें मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए तो वो कर सकता है। Protection of the Constitution and the fundamental rights. If any law enacted by the government is against the spirit of Constitution, the Supreme Court can declare it null and void. This is known as judicial review. The Supreme Court also protects the fundamental rights of a person if they are violated. The Supreme Court is also a court of record. All its decisions are published. These decisions are used as precedents in the form of law in future cases. यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी स्टेट या कोई भी मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर में उसमें कार्रवाई कर सकता है, और इसे जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा भी करता है यदि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड की तरह भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सारे रिकॉर्ड होते हैं वो लिखित में होते हैं और पब्लिश भी किए जाते हैं उनके डिसीजंस, और वो डिसीजंस जो हैं वो फ्यूचर में जो केसेस आते हैं उनको गाइड करने में भी हेल्प करते हैं। नाउ हाई कोर्ट। ऑर्डिनरली every state has a high court. However, even two or more states may have one high court. These high courts work under the Supreme Court. The High Court of Madhya Pradesh is situated at Jabalpur. It has two benches at Gwalior and Indore. There is a Chief Justice and other judges in the High Court. The number of judges is decided by the State Assembly. The Chief Justice of High Court is appointed by the President as consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state.
The other judges of the High Court are appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court. लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, कई बार ये 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में सिचुएटेड है और इसकी 2 बेंचेस ग्वालियर और इंदौर में हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और बाकी के जजेस होते हैं। स्टेट असेंबली इन जजेस की संख्या को डिसाइड करती है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी एडवाइस से उनसे कंसल्ट करके फिर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर जो स्टेट का गवर्नर होता है उनसे कंसल्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और बाकी के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की सलाह पर उनसे कंसल्ट करने के बाद किया जाता है। Qualifications for the judges of High Court: he should be a citizen of India, he should have worked as a judge in any court of the state for 10 years or practiced law for 10 years। वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 10 सालों तक एक जज के रूप में कार्य किया हो किसी कोर्ट में या फिर 10 ईयर्स तक उसने लॉ की प्रैक्टिस की हो। टेनर: Judges of the High Court remain in office until they attain the age of 62 years. Prior to this, he can resign from the post of his own. He can also be impeached on the ground of proven misbehavior and incapacity. सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह है कि जब वो 62 ईयर्स के हो जाए तो फिर वो यहाँ पर जजेस का कार्यकाल जो है वो 62 ईयर्स है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल 65 ईयर्स है। हाँ, यह है कि उसके बाद जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जब वो यदि उसके पहले यदि वो चाहें तो वो रिज़ाइन खुद से दे सकते हैं या फिर उनके खिलाफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी प्रूव करने के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। The powers and function of the High Court. The High Court has the following powers and functions: judicial functions, matters of serious nature, company law, contempt of court, etc. Matters related to protection of fundamental rights can be directly taken up by the High Court. The High Court has the rights to hear appeal in civil and criminal cases. If the district court passes judgment of death sentence in any matter, it has to be approved by the High Court. कोई सीरियस मैटर्स होते हैं या जैसे कि डाइवोर्स है, कंपनी लॉ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सारे मैटर्स पर या फिर फंडामेंटल राइट्स किसी के यदि उनको प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट्स को, तो इन सारी चीज़ों पर जो हाई कोर्ट है वो अपील सुनता है। हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल केस और सिविल केसेस की अपील भी सुनने का अधिकार है, वो उन पर भी फैसले देता है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी पर्सन को मौत की सज़ा दी है तो उसे हाई कोर्ट में इसे सही साबित करना होता है। So children, you have to read the chapter deeply and carefully. In the next video, we will read about the other functions of the Supreme Court, High Court and Lok Adalat.